Welcome to all of you, my dear students. We are going to discuss our topic friction and advantages of friction. Okay, we discussed types of frictions and subtypes of kinetic friction also. Okay, now what are the advantages of friction? फ्रिक्शन किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, क्या उसके एडवांटेजेस है? ओके, सो फर्स्ट इज फ्रिक्शन हेल्प्स अस वॉक. Friction helps to walk on the road. How friction helps to walk on the road? Because the friction between our feet and the ground. The friction between our feet and ground help walking on the road. Okay, हमारे पैर से और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से हम बिना स्लिप हुए ग्राउंड पर क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. ओके, सो फ्रिक्शन हेल्प अस वॉक. नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ व्हीकल. मूवमेंट ऑफ व्हीकल मीन्स एनी व्हीकल लाइक कार, truck, buses easily move on the road. Okay, because the friction between the tires and ground is provided, so vehicle easily move on the ground. Some grooves also provided. Some grooves also provided on the tires of the vehicle, so it increase the friction and make a proper grip to move on the ground. Okay, for example, आप लोगों ने टायर देखा होगा इस तरीके से. ये टायर है और इसमें ये जो ग्रूव्स हैं they are help to walk on the road. Okay, now next, spike shoe for better grip. Spiked shoes for better grip. Some players and athletes is used to spike shoes for running on the ground. Okay, so spike shoes क्या करते हैं, ये एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं. जो ये स्पाइक्स दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइक्स शूज के सोल में नीचे स्पाइक्स होते हैं. ये एक ग्रिप बनाते हैं ग्राउंड और शूज के बीच में. सो फ्रिक्शन यहाँ पर इंक्रीज होता है. देन द प्लेयर्स और एथलीट्स कैन इजीली रन ऑन द ग्राउंड. ओके, नाउ नेक्स्ट यूज राइटिंग. How we write on the paper? We write on the paper with the help of friction. There is a friction between copy or our notebook and pen, tip of the pen. So due to friction we can write easily on the notebook without slipping like this. आप सभी लोग लिखते हैं कॉपी में. So इस बुक के बीच, कॉपी और पेन के बीच में एक फ्रिक्शन है. उस फ्रिक्शन की वजह से we can easily write on the notebook. Okay, next, application of brakes. Okay, suppose we are driving to a bicycle or any motorcycle, car, any vehicle. Then for the stoppage of this vehicle we apply a brake. And what is the function of brake? Brakes create a friction between the brake shoes and drum of the wheel. Okay, so the vehicle easily stop. Okay, ये brake का application है. Okay, and how brake works? Brakes work on the principle of friction. Friction की वजह से क्या होगा, we can easily stop the any vehicle. Lightning of a matchstick. आप लोगों ने माचिस की तीली से फायर क्रिएट किया होगा. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस?
if we rub a matchstick on the matchbox, then what will happen? Due to friction की वजह से the temperature between these two surface is rise, and if the temperature is rise, then the chemical used on the matchbox strip easily burn due to rise in temperature and explode a fire. Okay, फ्रिक्शन की वजह से सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे जो केमिकल उस पर लगा हुआ होता है, ठीक है, फास्फोरस वगैरह जिस पे लगा हुआ रहता है, वो क्या करता है, फायर पकड़ लेता है और वी कैन इजीली create a fire. Okay, screws and nails. Okay, due to friction, with the help of friction we can easily screw and nails on the wood. लकड़ी में हम स्क्रू वगैरह लगाते हैं due to friction. Okay, so these are the main application or advantages of friction. Okay, please write this. Now the next topic is how we increase the friction. किस तरीके से हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, ways of increasing friction. Okay, so the first method is by making the surface rough. Okay, जितना surface ज़्यादा rough होगा उतना ही फ्रिक्शन क्या होगा, increase होगा. Okay, so by making the surface rough we can increase the friction. For example, if you increase the roughness on the surface of matchstick, माचिस के ऊपर जितना आप roughness increase करेंगे उतना ही friction ज़्यादा होगा, उतना ही टेम्परेचर उस सरफेस का इंक्रीज होगा और इजीली फायर क्रिएट वहाँ पर होगी. ओके, वन मोर एग्जांपल, कबड्डी प्लेयर्स जो हैं वो अपने हाथों को थोड़ा सॉइल पर अच्छा से रगड़ते हैं ताकि ग्रिप अच्छी बने. ओके, सो व्हाट दे डू बाय मेकिंग द सरफेस रफ एंड इन दिस वे दे इंक्रीज द फ्रिक्शन. ओके, सेकेंड, बाय मेकिंग ग्रूव्स. By making grooves means for the bicycle, car, bus, trucks, on the surface of tire, the grooves is like that. Grooves is like that. This is the groove. Okay, the surface like this. The surface is like this. Okay, this is the groove on the tires. This is the groove on the tire. So these grooves increase the friction and there is a perfect contact between this tire and surface, so without slipping it can easily move on the ground. Okay, so in this way we can increase the pressure. Okay, please write this. So the next topic is friction is an evil. Evil means शैतान, राक्षस. किस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो एविल है, या डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं फ्रिक्शन, what are the advantages of friction, and in this topic we discuss on disadvantages of friction. Okay, so what are the disadvantages? First, damage to the machine. How friction damage to the machine. फ्रिक्शन किस तरीके से मशीन को डैमेज करता है. ओके, सपोज कोई मशीन है वो रन कर रही है. ओके, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. जितना ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं क्या होता है, हीट जो है वो क्या होती है, जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से उस मशीन के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं. ओके, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड द डैमेज द मशीन, और वो मशीन क्या होती है, डैमेज होती है. ओके,
सेकेंड वियर एंड टीयर. वियर एंड टीयर मीन्स व्हाट, काफी टाइम से जब मशीन चलती है या जैसे मान लीजिए कि जो पार्ट्स खराब हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, जैसे मान लीजिए ग्राउंड पर जो अपनी बाइक हैं उसके टायर्स हैं वो एक टाइम बाद में क्या होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ओके, घिस जाते हैं. सो वी टर्न आउट द टायर एंड टेक अ न्यू टायर फॉर द व्हीकल. ओके, तो वियर एंड टेयर मीन्स यही कि जो भी चीजें फ्रिक्शन की वजह से जो भी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, घिस जाते हैं. ठीक है, तो उन्हें नया लगाया जाता है. ओके, सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट, लॉस ऑफ एनर्जी. हाउ द लॉस ऑफ एनर्जी? द लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स व्हाट, द फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ द व्हीकल. ओके, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन. ओके, सो इस फ्रिक्शन से ओवरकम होने के लिए, इस फ्रिक्शन से आगे निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो की जरूरत पड़ती है. सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड द लॉस ऑफ एनर्जी. ओके, नेक्स्ट, reduces the efficiency of machine. How the reduces the efficiency of machine means some force is applied for the what, some force is applied for to run the machine. Okay, due to overcome the friction. Okay, friction को overcome करने के लिए कुछ extra energy हमें देनी पड़ती है. वो इस extra energy की वजह से ही क्या होता है, efficiency जो है वो reduce हो जाती है. Okay, और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है. हाउ एनर्जी इज वेस्टेज? ड्यू टू फ्रिक्शन. मीन्स जितना इनपुट हमने दिया था, ठीक है, जितनी एनर्जी हमने दी थी, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या हो गई है, लॉस हो गई है. तो जब जितना इनपुट हमने दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, और जो पेट्रोल डलवाया है, ठीक है, आपने पेट्रोल डलवाया, उसका आपको पूरा का पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज सम अमाउंट ऑफ फ्यूल इज वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ओवरकम द फ्रिक्शन. ओके, सो इफ द आउटपुट इज रिड्यूस देन द एफिशिएंसी इज ऑल्सो रिड्यूस. अगर आउटपुट कम हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी, क्षमता है कार्य करने की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. ओके, so these are the disadvantages of friction. Okay, and we discuss the next topic, how to reduce the friction. Friction किस तरीके से reduce किया जाएगा. Okay, so please write this.